Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Mrs. Nazma Atar from Government College for Women, Dubai Mahal Road, Bahawalpur. This lecture is for class first year English compulsory. Today's topic of the lecture is a poem Ozymandias. Ozymandias is written by Percy Bysshe Shelley. A brief introduction of the poet. P.B. Shelley was an English Romantic poet. He wrote some of his finest lyrics, including the Ode to the West Wind, To a Skylark, or another poem, The Cloud. In the last year of his life, he died in a storm at sea after visiting Lord Byron, another great poet. Shelley's work show his remarkable lyrical gift, his originality, and his hatred for oppression. He was a great revolutionary poet of his time. Ozymandias. Ozymandias is a poem that is called sonnet. Sonnet is a poem about 14 lines. Although Shelley is romantic poet, but the way he tackled the topic in this poem is remarkable. Ozymandias is a narrative sonnet about a traveler who found a broken statue of Ozymandias. While initially quite confusing, the the poem shows Shelley at his best, bringing low ambitious dictator of the world. Now I will read the poem and then I will paraphrase the poem. I met a traveler from an antique land who said, two vast and trunkless legs of stone stand in the desert. Near them on the sand, half sunk, a shattered visage lies, whose frown and wrinkled lip and sneer of cold command tell that its sculptor well those passion read which yet survive, stamped on these lifeless things, the hand that mocked them and the heart that feed. And on the pedestal these words appear. My name is Ozymandias, King of Kings. Look on my words, ye mighty, and despair. Nothing beside remains round the decay of that colossal wreck, boundless and bare. The lone and level sand stretched far away. Now we will paraphrase the poem. I met a traveler from an antique land. I met a traveler यानी कि मैं मिला एक मुसाफिर से एंटीक लैंड एंटीक कहते हैं किसी कदीम ओल्ड लैंड सरज़मीन के मैं किसी सरज़मीन के एक कदीम सरज़मीन के एक मुसाफिर से मिला हु सेड यानी उसने पोइट को बताया टू वास्ट एंड ट्रंकलेस स्लैग्स ऑफ स्टोन कि दो वास्ट वैसे तो वसी को कहते हैं यहाँ पर हम बड़ी बड़ी ट्रंकलेस बग़ैर धड़ के पत्थर की टांगें थीं स्टैंड इन द डेजर्ट जो कि खड़ी थीं सहरा में नियर देम उनके पास ऑन द सैंड यानी रेत थी रेत में दो बड़ी बड़ी टांगें जो थी वो सहरा में खड़ी थी हाफ संक आधी डूबी हुई अ शैटर्ड तो यहाँ मुराद है मस्क शुदा डैमेज विसिज चेहरा फेस लाइज हुज फोन वो कहते हैं कि आधा धसा हुआ चेहरा था यानी मुजस्मा बना हुआ था वो और चेहरा जो था वो डैमेज था मस्क शुदा था हुज फ्रोन और उस पर तेवरियाँ थीं यानी द पोइट अब हम इसका इंग्लिश में पैराफ्रेज करेंगे वो कहते हैं द पोइट मेट अ ट्रेवलर ही केम फ्रॉम एन एंशियंट लैंड ही टोल्ड द पोइट दैट ही हैड सीन अ स्टैचू इट वाज स्टैंडिंग इन द डेजर्ट इट्स टू ह्यूज लेग्स were without a trunk.
The face of the statue was lying in the sand. It lay half buried there. The feature of the face was distorted, यानी डैमेज थे, उसके जो चेहरे के खद्दो खाल थे वो डैमेज थे. बट आगे वो क्या कहता है 5वीं लाइन में, एंड wrinkled lip and sneer of cold command. रिंकल कहते हैं शिकनों को, कि उसके फोल्ड्स थे, क्रीजें थी, उसके जो लिप्स थे उस पर फोल्ड्स और जो क्रीजें थी वो नज़र आ रही थी. क्रीज जो होती है तह लाइन नज़र आ रही थी. सनियर हकारत की, मॉक की, रिडिक्यूल करने की, ऑफ कोल्ड. कोल्ड वैसे तो ठंड को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर कोल्ड से मुराद है ब्रूटल, क्रूअल, पिटीलेस, सेल्फिशनेस. कमांड हुक्म की, यानी कि उसके होंठों पर जो शिकने थीं वो हकारत ज़ाहिर कर रही थी उसकी बेरहमी के हुक्म की, जो बेरहमी से वो हुक्म दिया करता था. टेल दैट इट्स स्कल्पचर वेल दोस पैशन रीड. कहते हैं कि जो बताते हैं, जो मुजस्मा साज, स्कल्पटर यानी मुजस्मा बनाने वाला जो आदमी है, मुजस्मा साज है, जिसने इनग्रेवर है, जिसने आइडल मेकर जिसको कहते हैं, जिसने मुजस्मा बनाया है, वो उसके एहसासात को बताता है. उसने उसके एहसासात को बखूबी पढ़ा हुआ है. रीड यानी उसने, ऐसे हम फेस रीडिंग कहते हैं, उसने उसको एहसासात को पैशन रीड किए हुए हैं उसके. विच येट सर्वाइव स्टैम्प्टेड ऑन द लाइफलेस थिंग. वो कहते हैं विच येट, जो अभी तक, सर्वाइव मीन बाकी थे, जिंदा थे, बचे हुए थे. सर्वाइव मीन रिमेन थे, लास्ट, रेजिस्ट करते थे, मौजूद थे इस बेजान चीज़ों पर, यानी उसके बेजान जिस्म पर, यानी जो पत्थर का जिस्म बना हुआ था उस पर जो जज्बात थे वो अभी तक, स्टैम्प्ड कहते हैं किसी चीज़ के ऊपर सपत कर देना, जोड़ देना, लगा देना, लगे हुए थे, यानी नज़र आ रहे थे. और वो मुजस्मा साज ने पढ़े थे. उसने जो पिछली लाइन में था कि पैशन रीड उसने पढ़े हुए थे और उसने वो इनग्रेव्ड किए हुए थे. द हैंड दैट मॉक्ड दैम एंड द हार्ट. कहता है मुजस्मा साज के हाथ की महारत थी. ये जो थे, जो हाथ थे जो मुजस्मा साज के, उन्होंने नकल की थी उन तमाम जज्बात की, उस शख्स के, बादशाह के दिली जज्बात की जो उसके दिल में हुआ करते थे. कहते हैं द फेस ऑफ द स्टैचू हैड अ फ्रोन ऑन इट, इट्स लिप्स वर रिंकल, देयर वर अ लुक ऑफ एंगर ऑन इट. द फेस showed merciless authority. All the feeling of cruel king were clearly depicted there. It shows that the sculptor did not know and understand well the unkind feeling, did know. The sculptors did know very well, he understood the feeling of his kindness, his hatred, and his feeling of pride, powerful king. Therefore, he had carved them so plainly, so simply on the face. The idea is that the king's feelings were still visible on his face. What type of the feeling? Feelings of pride, because he was a king. एंड ऑन द पेडिस्टल दीज वर्ड्स अपीयर. वो कहता है कि और जो बेस थी, पेडिस्टल हम कहते हैं बेस को, स्टैंड को, फाउंडेशन को, जो बुनियाद थी उसके पास कहते हैं वर्ड्स जो हैं वो वर्ड्स अपीयर्ड, यानी सामने लिखे हुए थे, कनिंदा हुए हुए थे. वो वर्ड क्या थे? माई नेम इज़ ओजिमेंडियस, मेरा नाम ओजिमेंडियस है. किंग ऑफ किंग, बादशाहों का बादशाह. लुक ऑन माई वर्क्स, यानी मेरे कामों की तरफ देखो. ये माइटी अजीम लोगो एंड डेस्पेयर, और मायूस हो जाओ, यानी कि मेरे कारनामों को देखो, बेशुमार काम मैंने किए, ज़मीन फ़तह की, हर तरफ मेरा चर्चा था, उसको देखो. द वर्ड्स कार्व्ड ऑन द फुट ऑफ द स्टैचू शोड दैट ऑजमैंडियास वाज a great powerful king. They show that there was no equal to him. The king claimed to be the king of the kings. He had challenged all the great kings of that time not to try to be equal to him, otherwise they will be just like that, just like his own body, just like his own personality, they would be disappointed. नेक्स्ट है जी, नथिंग बिसाइड रिमेन्स राउंड द डिके. इसके सिवा कोई कारनामा बाकी नहीं रहा. राउंड द डिके, कि अब शिकस्ता हाल हो रहा है. इवन कि उसका मुजस्मा भी, उसका जो मुजस्मा भी है वो भी शिकस्ता हाल हो रहा है. ऑफ द क्लोसल रैक बाउंडलेस एंड बियर. क्लोसल कहते हैं बहुत, क्लोसल कहते हैं बहुत बड़े को, ह्यूज को, जो इमेंस, वास्ट, ग्रेट. रैक टूटा फूटा है.
बाउंडलेस वसी और रीज़ में जो बिल्कुल जिसकी कोई हद नहीं होती, एंड बियर और बिल्कुल खाली नंगा, ऊपर से कुछ भी नहीं है। कहते हैं इस टूटे फूटे बहुत बुलंद कामत मुजस्मे को देखें, इसकी बाकियात को देखें जो टूट फूट चुका है, दो हिस्सों में सेंग उसका विसित जो है वो अलग हो चुका है, उसकी टांगें जो हैं अलग खड़ी हैं, और एक बिल्कुल वसीह व अरीस इलाके में फैला हुआ है, और वहाँ पर एंड बियर यानी कोई दरख्त कोई चीज़ वहाँ पर नहीं है, बिल्कुल नंगा है और रेत में है। द लोन एंड लेवल सैंड स्ट्रेच फार अवे, कहते हैं सुनसान, द लोन बिल्कुल सुनसान है, अकेला है, तन्हा है, एंड लेवल और बिल्कुल फैला हुआ है। लेवल का मीन रेंज जो भी है उसकी जो फैला हुआ है, हर तरफ मट्टी ही मट्टी नज़र आती है, वहाँ सैंड है और दूर तक फैली हुई है, दूर तक जो भी चीज़ नज़र आती है वहाँ पर सिर्फ सैंड है। कहते हैं नाउ जस्ट सी द किंग स्टैचू ऑल अलोन इन द डेजर्ट, नथिंग कैन बी सीन नियर इट, everything else has gone, the big broken statue is further decaying, only a vast barren desert surrounded the remains of his statue। खुद वो अपनी पोइम में आखिर में यानी शायर है बताने की कोशिश करता है कि माय नेम इज़ ओज़िमेंडियस, कि मेरा नाम जो है वो ओज़िमेंडियस है, मैं बादशाहों का बादशाह हूँ और कुछ भी बाकी नहीं बचा, सब कुछ जो है वो ख़त्म हो गया है। अगर हम देखें तो मेन थीम जो उसने डिस्क्राइब किया है शेले ने वो ये है, इट इज़ वेरी आयरॉनिकल पोएम विच डिस्क्राइब द प्राइड ऑफ अ मैन, कि एक आदमी का जो गरूर है वो कैसे मट्टी में मिल जाता है, एंड wretched reality of life, man becomes proud by success. He thinks that he has toppled the world. He forgets that life is merciless. Time brings all luxuries of life to an end, and death is a great leveler. Shelley considers all feelings of superiority in man as only an illusion and self-depiction. Illusion mean कि हमें एक धोखा है। दुनिया वैसे तो हम मुसलमान हैं, हमें तो अंदाज़ा है कि जो जाहो जलाल है, हर चीज़ जो आपको नज़र आ रही है उसको ज़वाल हासिल है, और सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात है जिसको हमेशा दायम रहेगी और हयुल क़य्यूम रहेगी। ये एक स्टैचू की तस्वीर है जो अवेलेबल है, जो आप देख सकते हैं कि जिसकी बड़ी बड़ी टांगें और चेहरा जो है वो उसका अलग हुआ है, आपको अंदाज़ा होगा। आज हमने इसकी पैराफ्रेज़ की है, नेक्स्ट लेक्चर में हम रेफरेंस टू दी कॉन्टेस्ट और इसकी एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू माय डियर क्लास, अल्लाह हाफ़िज़।